today is day one. Will be in day one before our lunch. We'll be doing developing safety culture, general safety management, and PTWs. And in the second half, we'll take up CE regulations, Central Electricity Act regulations, and other will take up PPEs, personal protective equipments, electrical documents, earthing check, and fire, and this CA regulations. Day two, we are going to start with safety manual, electrical documents, emergency plan, PPE, personal protective equipment, earthing. And in the second half, second day, we'll take up fire safety in totality. So when we start with the developing a safety culture at workplace, what does it mean? So basically, safety culture means awareness of the safety. Safety culture at a workplace. What we mean by safety culture is a workplace. You understand, workplace where we are going to work, and we have Yes. to ensure safety of all persons, the persons working there, equipment, as well as the environmental safety. Safety culture at a workplace has gained importance to a very great extent. Even where the safety management has been successfully implemented, there were accidents. जहाँ भी हमने देखा है, you understand Hindi also ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो वर्क में सेफ्टी मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because even if we implement all these safety management system at workplace, still we find there are accidents, which shows there is possibility of, however remote, of human failure. Most of the time accidents do occur when least expected. And once we define accident, क्या होता है accident, what is an accident, how if it's an unplanned, unexpected event which causes bodily injury to the persons, environment damage, or damage to the property, means the equipment where we are working. Need was felt that people should gradually attune to take safety as a lifestyle measures. आज की डेट में लोग सेफ्टी सेफ्टी कहते हैं, बट एंड व्हेन वी से ओके यू हैव टू गो फॉर सेफ्टी, बट इन टोटलिटी आज देखिए अभी इतना जो कोरोना का चक्कर है, आई बी if you are going in the market, you will find number of persons without mask. So there can be accidents of this disease can be there. And today I also going through the news, 66 deaths have occurred in Bombay yesterday. 66 deaths. And if you have seen the funeral of Lata Mangeshkar, they were huge gathering. So this is how safety culture, जब हम बात कर रहे हैं, we will be discussing only for industrial setup, पावर प्लांट्स हैं या जो इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं. दिस पर्पस डेफिनेटली स्टेप्स वर सजेस्टेड एंड आइडिया ऑफ सेफ्टी कल्चर इज इंट्रोड्यूस. सेफ्टी कल्चर को इंट्रोड्यूस आज से पहले कभी लोगों को, आज से व्हेन आई रिटायर्ड फ्रॉम एनटीपीसी इन 2007, and when I joined safety in 1980, there was no safety at all. I couldn't I joined in safety department, and then I had to go for lot of work in safety education, safety systems, everything. Then we could achieve the little bit of better safety aspect. पर्पस ये है कि सुजेस्ट करते हैं सेफ्टी कल्चर इज इंट्रोड्यूस, जिसमें भी बेनिफिट्स क्या हैं. अगर सेफ्टी हम कल्चर डेवलप करेंगे तो व्हाट विल बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट. It will improve safety performance in all departments. All the departments in a plant, in a factory, are interlinked together. And when we say there is a safety culture, means अगर हम अपने आप को सेफ्टी के साथ सब काम करेंगे तो डेफिनेटली विल इम्प्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स. इट विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, जिससे अब करेंगे तो थोड़ा इफेक्टिवनेस भी आ जाएगा. एंड it will help to people plan safety culture, develop safety towards excellence. अगर सेफ्टी होगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, द ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी अच्छा होगा. If you see when we talk of other organization in NTPC, people give examples. Now NTPC, you see the accident rate is very less, and they are giving full powers.
in DMRC, Delhi Metro, you see the safety standards are developed. तो वहाँ जो है उससे कल्चर से एक्सीलेंस अचीव किया जा सकता है. It reveals many aspects of safety at workplace and indicates ways and means to resolve various management issues. अगर आपके यहाँ safety होगी, because if at all there is an accident, you see number of persons are engaged in that activity. Production department is held up, HR department is involved, safe, then personal department is involved, then factory inspector. So many things come in way, and that will, अगर हमारा ये safety culture proper होगा, if we are adopting safety measures all in all areas of work, definitely we are going to have a smooth production, smooth generation. मीनिंग ऑफ सेफ्टी कल्चर क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप वैल्यूज. आपकी जो जितनी वैल्यूज हैं, ग्रुप की हैं, इंडिविजुअल्स की हैं, बिलीफ्स हैं, लोगों का एटीट्यूड क्या है, लोगों का, दैट मैटर्स टू सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब नाउ यू मे आस्क, सर, व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? Safety management system is managing safety at a workplace. In short, we can say मैनेजिंग सेफ्टी एट ए वर्क प्लेस. से हम काम करने के एरिया में, बिकॉज एवरीवेयर यू विल फाइंड हैजर्ड्स, एंड विल टॉक ऑफ हैजर्ड्स, तो लोग कहेंगे जी हैजर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? हैजर्ड्स इज खतरा जिसको बोलते हैं, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटिंग विद द एक्सीडेंट, जहाँ प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के, उसको हम बोलते हैं हैजर्ड्स हैं. एंड अगर हम बात करें तो हैजर्ड्स तो कहाँ नहीं है? हैजर्ड एवरीवेयर यू विल फाइंड हैजर्ड. एंड हैजर्ड्स के साथ क्या है? रिस्क इन्वॉल्व है. रिस्क क्या है कि हाउ मच वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द कंसर्न हैजर्ड इफ वी bypass some safety norms. Then phase 1 of development we will talk. उसमें सेफ्टी कल्चर लाना है तो हमें पहले क्या है, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, वी हैव टू फॉलो ऑल रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू द वर्क प्लेस सेफ्टी. अगर हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो विल सी फैक्ट्री एक्ट इज एप्लीकेबल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज एक्टिव. आपने नाम सुना होगा, इतने एक्ट्स हैं, इतने रूल्स हैं. अब when we are dealing with electricity, तो then we have to follow all electrical regulations and rules. क्या कहते हैं उसके मुताबिक हमको अपना सिस्टम को करना है और लोगों को उसके बारे में ट्रेन करना है. देन नीड टू फुलफिल ऑल रेगुलेशन. अगर रेगुलेशंस हैं, इफ यू सी देयर इज अ रेगुलेशन कि भाई आपको सेफ्टी हेलमेट पहनना है while driving, and अगर आपने हेलमेट ले लिया and you are just hanged in the front of your two wheeler, does it mean कि you are following regulations? You are not fulfilling the all regulations. Similarly, in industry, we have got a lot of regulations to be followed. Workplace में है, if we have to go work on heights, हमें आगे we'll take up all these issues. जहाँ भी हमें काम करना है तो हमें वहाँ need है all regulations to be fulfilled. This is phase 1. Then phase 2 में क्या? Transition phase efforts are initiated. क्या है? Spent improve safety standard. Safety is such a thing, it cannot be implemented, it cannot be achieved in a day. It's a continual process. आज आपने कोई सेफ्टी का सिस्टम निकाला है, tomorrow you may go for better, then again better. It's a continual. Safety is a continual process. एक ही दिन में सेफ्टी नहीं आएगी. Day by day you will achieve all these things. Purpose of safety of the persons working in the work area. हमारा जो पर्पस है सेफ्टी का, वो जो है कि जो आदमी काम कर रहा है, he should be least कंडीशंस हैं उनको कंसंट्रेट करके चेक करना है. सपोजिंग यू आर वर्किंग इन ए कन्फाइंड एरिया जहां ऑक्सीजन की कमी है, वी हैव टू इंश्योर दैट प्रॉपर ब्रीदिंग कैन बी डन बाय द पर्सन हु इज वर्किंग इनसाइड. So these are all concentrated working conditions. क्या है? If a person is working, जिसमें हम फैक्ट्री एक्ट को हम लेते हैं तो वो जैसे कि इल्यूमिनेशन लेवल शुड बी दिस मच, इतने डेसी होना चाहिए, और अगर नॉइज लेवल अगर हाई है तो उसको अब कम करना है. When we take up personal protective equipment, ये सारी जो है continual improvement की हैं, ये सेफ्टी कल्चर को एनहांस करने के मेथड्स हैं. Then to the extent on human behavior, accident जब भी हम देखते हैं ना, most of the time we find the accidents just don't happen. They are caused.
और वो क्यों होता है एक्सीडेंट? ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, लोगों का जो बिहेवियर है दैट काउंट्स अ लॉट टू द एक्सीडेंट। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं आज की डेट में, हमने इतने एक्सीडेंट in my lifetime I have seen lot of accident, more than 100 fatal accidents I have investigated. तो ह्यूमन बिहेवियर जो है दैट काउंट्स ए लॉट। लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है काम करने में, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने कभी जाएंगे फैक्ट्री में, आप बोलेंगे भैया नहीं इसको ऐसे करना है, नो सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। दैट बिहेवियर इटसेल्फ इज ए नेगेटिव। तो उस चीजों को देखते हुए हमें ये सारे जो है सेफ्टी कल्चर के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जब फास्ट थ्री फेज 3 की हम बात करते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब हम काम करने जा रहे हैं या काम करवा रहे हैं तो हमें वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, उस कंडीशन में जो आदमी काम करेगा उसकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे करेंगे ये हमें देखना है। द पर्सन हु इज डूइंग ए वेल्डिंग, हमें देखना है कि वेल्डिंग फ्यूम्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। जो वेल्डिंग ग्लास उसको ने लगा रखा है दैट इज इंश्योर्ड सेफ ऑफ फॉर हिज आईज और नॉट। तो जो हमारे गैस सिलेंडर्स हैं, वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज किए गए हैं कि नहीं। बिकॉज एक्सीडेंट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अगर वहां भी कोई फेलियर होगा तो दैट मे कॉज एक्सीडेंट। मोर एफर्ट्स आर मेड ऑन इम्प्रूविंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखेंगे डे बाय डे, जैसे ही अभी आपने देखा होगा आईएसओ सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई हैं। पहले सेफ्टी होती थी, फिर उसके बाद आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उन्होंने बताया कि सेफ्टी के लिए हमारे के पास 18,001 है, एनवायरनमेंट के लिए हमें 14,001 है, क्वालिटी के लिए 9,001 है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें अगर 18,001 हम सेफ्टी का लेते हैं तो उसमें क्या है? उसमें यह है कि वी आर फॉलोइंग ऑल दीज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू लॉज, एक्ट्स, रेगुलेशंस वगैरह सबको। तो उसमें हमें जब लेते हैं तो वही इम्प्रूव सेफ्टी मैनेजमेंट। ह्यूमन फैक्टर्स की जब हम बात करें, इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन रिजॉल्विंग सेफ्टी इश्यूज एंड प्रॉब्लम। अब ह्यूमन फैक्टर है, एक आदमी अगर आपको आके फैक्ट्री में व्हेन यू आर वर्किंग इन ए प्लांट, एक आदमी आके आपको बोलता है सर ये प्रॉब्लम आ रही है, you don't turn a deaf ear to that. Okay, we'll see to it and we'll get it. we'll we have to sort out their problems. तो फेज 3 में जब हम सेफ्टी कल्चर की बात करते हैं तो पहला आ जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारे बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। पहले तो सिस्टम बनाने हैं। हर सेफ्टी सिस्टम बना होता है, हर इक्विपमेंट का है, हर एरिया का बना होता है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, देन हाउ वी विल इन्वॉल्व द वर्कर्स इन दैट एरिया, कि जो हमारे काम करने वाले हैं उनको कैसे उसमें इन्वॉल्व करना है, कैसे उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। सो दीज आर द इश्यूज, उनकी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है। वर्कर इज वर्किंग इन ए कोल हैंडलिंग प्लांट, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कोल डस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो हाउ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। तो उसमें हमें क्या है, एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगाएंगे या उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देंगे या सप्रेशन सिस्टम देंगे। ये हर चीज़ में आप देखेंगे आगे बढ़ता जाता है ये जो है। Phase 4, when we talk of phase 4 in safety culture, then efforts are put to anticipate future problems. आगे फ्यूचर प्रॉब्लम अभी देखिए 18,001 आई वाज टॉकिंग ऑफ आईएसओ 18,000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 18,001 बनाया था कि सेफ्टी से रिलेटेड है। उसमें ये होता था कि वी जस्ट गो फॉर ऑडिट, हम ये चीज़ें होनी चाहिए। तो नाउ इट इज 45,001 आ गया है, उसमें और इम्प्रूवमेंट आ गई है कि उसमें ये है कि ये प्रॉब्लम हमें पता है, एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को आगे ना आए तो उसका क्या सोल्यूशन है, दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो इसलिए जो फेज 4 की हम बात करते हैं, तो फेज 4 इज नथिंग बट एफर्ट्स आर पुट टू एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज क्या वर्क प्लेस में आ सकते हैं। देन एंड क्रिएट ए स्ट्रेटेजी, उसमें हमें कोई स्ट्रेटेजी टू ले फाउंडेशन फॉर सक्सेस इन फ्यूचर। सक्सेस इन फ्यूचर मीन्स कि वी शुडंट हैव एनी एक्सीडेंट इन फ्यूचर बिकॉज वर्किंग इन द सेम कंडीशंस। तो हमारा ये फेज 4 है सेफ्टी कल्चर का। फेज 5 आ जाता है एफर्ट्स एंड एनर्जी आर स्पेंट टू सी दैट कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर मेंटेन लेवल 91 to 100%। हमें जो है
सिंस वी आर ऑर्थोडॉक्स बाई नेचर, हमें पता है कि हर चीज के लिए 100% करेंगे, तो वी शुड 100% तो पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो से कि ओके लेवल सेट कर लेते हैं, आज हमने 50% लिया है, देन लेवल 50 to 70% है, 70 to 90% है, 91 to 100% कब कैसे करेंगे। तो उसमें क्या है, अप्रोच इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आपकी जो अप्रोच है वर्क एरिया में, जो आपकी अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, वर्कर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप ये देखिए, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट विदाउट गोइंग बैक टू अर्लियर पोजीशन, पुरानी पोजीशन में जाने से पहले हमें अच्छा आगे बढ़ के देखना है। एंड characterized of safety culture phase of development is known by carrying out an assessment। हमें हर चीज में असेसमेंट करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम हमने ये किया था, तो हमारा एक्सीडेंट क्राइटेरिया ये था, एक्सीडेंट रेट ये था। नाउ वी हैव अडॉप्टेड ऑल दीज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स। तो हमारा जो एरिया कंसर्न है, उसमें हमारा एक्सीडेंट रिडक्शन आया है। फर्दर व्हाट बेस्ट कैन बी डन। तो आप ये देखिए, द वेरी सिंपल, जो आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आपने देखा होगा पुराने टाइम में कटआउट लगाते थे, फ्यूज वायर लगाते थे उसमें। वी वर यूजिंग फ्यूज वायर्स इन कोर्सली इन कटआउट्स। एंड व्हेन वी सॉ दैट फ्यूज उड़ जाता है, लोगों ने क्या किया, तारे मोटी लगानी। समटाइम दे यूज्ड टू पुट कॉपर वायर्स आल्सो। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स इन माय प्लांट इन कोरबा एनटीपीसी, वेयर फ्यूज वायर्स वर यूज्ड एज कॉपर वायर्स। तो उसमें क्या था, फ्यूज का पर्पस है कि इफ देयर इज ए शॉर्ट सर्किट, तो उसमें फ्यूज उड़ जाना चाहिए, ब्लो ऑफ होना चाहिए। बट सिंस फ्यूज वर नॉट ब्लोन ऑफ, द पर्सन वर ब्लोन ऑफ। तो हमें ये चीजें देखनी है। उसका हमने क्या अल्टरनेटिव निकाला, यू मस्ट हैव हर्ड सीन आल्सो, एमसीबी लग गए हैं, जरा सा भी कहीं शॉर्ट होता है, जो ट्रिप हो जाता है, इक्विपमेंट सेव होता है, लाइफ सेव हो जाती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जो हमें कैरी आउट करनी है, असेसमेंट लगानी है आगे जाके, हाउ बेस्ट वी कैन परफॉर्म एट ए वर्क प्लेस। द मेन पर्पज ऑफ सेफ्टी इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स from accidents, property damage because of accident, environment damage because of accident। ये चीजें हमें सेफ्टी कल्चर में आगे लेके आती हैं।